Good morning, students. Today I am going to continue with your Flamingo, third chapter. The name of the chapter is Deep Water, and the author is William Douglas. First, I am going to read about the author here. William Douglas, 1898-1980, was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and a friend to President Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. The following extract is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. This is the extract taken from a book written by William O. Douglas. The name of the book is Of Man and Mountains. This story reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about the fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. This autobiography written by William Douglas, this is just a part of it. In this essay, we are going to read about how the author had overcome his fear of water. In this piece, he tells us about his fear of water and how he conquered it by his own determination and willpower. How he overcome his fear of water. We are going to read in this chapter. I am going to read the chapter now, page number 23. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at a YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the yellow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I stubbed my pride and I did it. अब यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तैरना सीखेंगे. अब उन्होंने कहाँ डिसाइड किया था कि YMCA जो याकिमा रिवर है वहाँ पर YMCA जो था यंगस्टर्स के लिए एक एसोसिएशन था, वहाँ पे वो सीखना चाहते थे तैरना. ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु वांट्स टू लर्न स्विमिंग. द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, मतलब वो जो याकिमा रिवर था बहुत ही डेंजरस रिवर था. यहाँ मदर हमेशा बताया करती थी कि वो जो रिवर है वहाँ पे बहुत सारे लोग डूब जाते हैं शायद, और वो जितनी भी बातें उनकी मदर ने उन्हें डिस्क्राइब की थी उन पोएट के माइंड में पूरी सब चीज़ें डिटेल्ड में फिट की हुई थी. बट YMCA जो पूल था वो बहुत सेफ था उनके नज़र में. 2 और 3 फीट डीप था एक तरफ से शैलो एंड पे और 9 फीट डीप था अदर एंड पे. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मतलब थोड़ा ज़्यादा को डर नहीं था. उन्होंने उसके लिए पैर ऑफ वाटर विंग्स खरीद लिए और जाने लगे. वो हिट करते थे नंगे पैर उसमें जाने का. स्किमी लेग्स वाटर वेव्स के लिए जो तैरने के लिए होते हैं वो. बट I subdued my pride and did it. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and the father took me to the beach in California. अब वो बता रहे हैं कि ये चीज़ डर जो था उनके अंदर पहले से ही था शायद. जब वो 3 या 4 साल के थे जब उनके पिता उनको ले गए थे एक बीच में कैलिफोर्निया में. वहाँ पे क्या हुआ था, एक शायद कुछ इंसिडेंट हुआ तब से उनके मन में डर बैठा हुआ है. इसलिए यहाँ पे जब स्विम कर रहे थे तब भी उनके अंदर वो डर था. He and I stood together in the surf. I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in the water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of waves. ये इंसिडेंट वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्यों जब YMCA पूल में जब उन्होंने सोचा निर्णय लिया कि वहाँ पे वो स्विम करना सीखेंगे. क्यों? क्योंकि वो पहले एक
बार उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब वो 3-4 साल के थे, तो उनके फादर के साथ जब वो कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, तब वहाँ पे एक लहरों ने उन्हें गिरा दिया था और वो शायद मिट्टी में पानी में दब गए थे अंदर। उनकी सांसें कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी और वो डर घबरा गए थे उस समय। उनके फादर जो है उस बात पे हंसने लग गए थे, मगर उनके मन में वो डर बैठ गया और वो शायद वही डर है जिससे वो उभर कर बाहर आना चाहते हैं। तब वो 9-10 साल के थे जब वो स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे, शायद 11 ईयर्स के थे जब वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वो डर पहले ही 3-4 साल की उम्र में बैठ गया था। वो डर को ओवरकम करने के लिए शायद YMCA पूल पे वो स्विमिंग करना चाहते थे कि वो ओवरकम हो जाए उस डर से, मगर वहाँ भी शायद कुछ ऐसा होता है कि वहाँ भी शायद वो ओवरकम नहीं कर पाएंगे। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज and stride childish fear, but in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब यहाँ पे पोएट ऑथर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इस स्विमिंग पूल में जाकर तैयार कर लिया कि मैं इसमें तैरूंगा। फर्स्ट दिन शायद उनके अंदर वो मेमोरीज वापस आ गई थी कि कैसे वो ड्रोन हो गए थे पानी में अपने फादर के साथ, वो डर उनके मन में बैठा हुआ था, वो बार बार उनके मन में आ रहा था। मगर 1-2 दिन के अंदर उन्होंने वो कॉन्फिडेंस ग्रो अप कर लिया था कि नहीं, मैं ओवरकम कर लूँगा इस चीज़ से, और वो ट्राई करने लगे अपने वाटर विंग्स के साथ और उन्होंने प्रयास भी किया और शायद वो कंफर्टेबल भी होने लगे थे पानी के साथ वो, मगर उनके साथ कुछ ऐसा वापस वहाँ पे भी एक मिस एडवेंचर हो गया। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज दैर। वो कब जाते थे? जब वहाँ पर कोई नहीं होता था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द लिटिल बटन वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज द bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the sides of the pool to wait for others. वो जाया करते थे कब? जब वहाँ पर कोई नहीं होता था और सब कुछ शांत होता था, क्वाइट होता था, पानी भी बहुत स्टिल होता था, बिल्कुल क्लियर दिखता था, इतना साफ पानी था, कोई भी वहाँ पे शायद स्विम नहीं कर रहा था उस समय तक, इसलिए बहुत क्लियर वाटर था, सब कुछ क्लियर दिख रहा था जैसे कि बाथ टब में दिखता हो। वो थोड़ा डरपोक भी थे, वो डरते थे अकेले जाने से, इसलिए वो पूल के साइड पे बैठकर वेट करते थे दूसरों का आने का, वहाँ जाने का। आई हैड नॉट बीन देयर अलोंग व्हेन इन केम अ बिग brushier of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skimmy. How did you like to be ducked?" How? अब वहाँ पे क्या हुआ? अब वो वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, बहुत समय तक नहीं बैठे हुए थे। एकदम से वहाँ पे एक बड़ा सा हट्टा कट्टा 18 साल का युवक वहाँ आ गया। वो फिजिकली बहुत बड़ा दिख रहा, जायंट दिख रहा था, उसके मतलब बाल थे उसके, अच्छा यंग ग्रो अप बॉय था वो, यंग मैन था, मजल्स मस्त, बहुत बिल्डअप मजल्स थे, और उसे देखकर वो चिढ़ाता है कि हाय स्किमी, कैसा रहेगा अगर तुम डक्ड हो जाओगे। विथ that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once at the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom. I could make a big jump, came to the surface, lie flat on it, and paddled to the edge of the pool. जब उसने बोला कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डक कर दूंगा, तुम्हें अंदर थ्रो कर दूंगा, इतने में तो उसने उसे उठा लिया उस बॉय ने और उसे डीप वाटर के अंदर फेंक दिया। वो बैठे के बैठे ही उस पोजीशन में अंदर पानी के अंदर चला गया। वो पानी वो स्वॉलो कर लिया, बॉटम। वो डर गया था, मिस्टर डोगल्स डर गए थे, और वो इतने डर गए थे कि वो उनके जो फीट से वे नीचे पहुँचे थे, तो उनका फीट एक स्टप करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। प्रयास कर रहे थे कि कैसे उस सरफेस जगह वापस ऊपर आने की कोशिश करें। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst.
But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow tint to it. I grew panic. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. इंसिडेंट बता रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि वो नीचे 9 फीट ही था, तो लगा मैं फेंका है तो नीचे चला जाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा इजीली और मैं मतलब निकल जाऊंगा बाहर। मगर जैसे ही वो नीचे जाते गए तो वो 9 फीट उनको ऐसे सीन कर रहा था जैसे वो 90 फीट्स हों, और 90 फीट जैसा वो बॉटम लगा था। तब तक वो बॉटम तक पहुंचते और वहाँ से स्टफ मतलब पैर लगाकर वापस थ्राइव करते ऊपर की तरफ, तब तक तो शायद उनका बहुत कुछ स्टेमिना जो है लॉस हो चुका था। वो जो ऐसा लगा था जैसे कॉक जैसा वो श्रम करके ऊपर धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, सिर्फ उनके आँखें और नथिंग एल्स, उसको कुछ भी नहीं दिखा था, सिर्फ पानी दिख रहा था और कुछ नहीं दिखा था। येलो पानी हो गया था, गंदा पानी हो चुका था। वो बहुत जल्दी पैनिक हो गए थे, घबरा गए थे और चाह रहे थे कैसे वो रस्सी उसे पकड़ में आ जाए और उसे पकड़ के वो पानी से बाहर आए, और बहुत घबराहट होने सफोकेट होने लग गया था। और जैसे ही वो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं, सिर्फ उनकी आंखें और नाक बाहर आई और मुंह से तो कुछ आवाज़ निकली ही नहीं। और हम आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।